So, hello students. In today's class, we're going to learn something is called as compound variation. Now it's time, students, to teach you what is compound variation. So, अभी तक इसके पहले वाले classes में हमने पढ़ा कि variation होता क्या है, isn't it? So, variation होता क्या है? Variation means like as one quantity goes up, the other quantity goes up, or as one quantity goes up, the second quantity goes down. So, ये सब चीज़ें हमने हमारे previous वाले videos में या फिर previous वाले classes में already हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. जिसको बोलते हैं वेरिएशन. वेरिएशन दो टाइप के होते हैं. मैंने एक बोला था डायरेक्ट वेरिएशन होता है, दूसरा इनवर्स वेरिएशन होता है. डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एज वन क्वांटिटी गोज अप द सेकंड क्वांटिटी आल्सो गोज अप. इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करके लेते हैं एंड देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सो डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, जैसे कि लाइक say suppose the number of objects will increase, the cost will also increase. As like say one apple costs 10 rupees, so 10 apple will cost 10 into 10, 100, isn't it? That is called as direct variation. As one quantity increases, as the number of apples increase, the cost also increase. So that is called as direct variation. दूसरा होता है inverse variation. बच्चों तो inverse variation होता है क्या? As one quantity increases or decreases, okay, एक example लेते हैं inverse variation के लिए. As one quantity increases, the second quantity decreases. So as one quantity increases and the second quantity decreases, उसको बोलते हैं inverse variation. अब वो example में सोचते हैं तो what will be the example? Say suppose the example would be as the number of workers increases, the calm get like the work get faster, isn't it? Work gets over very quickly. Reason, the number of workers have been increased, so obviously the work has become little faster. Are you getting it? Or else simple example, say suppose we are getting late to reach our school. So what school bus driver do? He uh, rush little bit with his speed. So the moment speed increases, time reduces, isn't it? So that exactly is called as inverse variation. As one quantity increases, second decreases. ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको ये कंपाउंड वेरिएशन समझ में आएगा. लेट्स कम बैक टू दिस कंपाउंड वेरिएशन. कंपाउंड वेरिएशन में होता क्या है, देयर वुड बी बेसिकली थ्री क्वांटिटीज, नॉट वन टू, बट देयर वुड बी थ्री क्वांटिटीज. नाउ देयर आर थ्री क्वांटिटीज. सो होता क्या है एग्जैक्टली? सो बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूजन होता है, सर इनको कैसे करना है. सो आई जस्ट टीच यू व्हाट विथ वन एग्जांपल. से लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. इफ 10, ये फिफ्थ वाला सम पढ़ते हैं. इफ 10 हॉर्सेस consumes 18 bushless in 36 days, how long 24 bushless last for 30 hours? So I'll just write it down over here so that you'll understand what exactly the sum is. If 10 horses, so there would be three quantities. As I mentioned to you, there would be three quantities. So first of all, there would be number of horses. Number of horses. दूसरा क्या है? Consumption of these bushless, isn't it? So consumption of bushless. So, or you can say the number of bags. Number of bushless. Number of bushels. And in 36 days. And the third quantity क्या है? Number of days. देखो बेसिकली वेरी सिंपल चीज है. तीन स्टेप में करेंगे, तीन स्टेप में पूरा का पूरा सम खत्म हो जाएगा और आपको 4 मार्क मिलेंगे. ये इतना कंफर्म क्वेश्चन है एग्जाम में. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर खोल दो, आपको ये कंपाउंड वेरिएशन का एटलीस्ट एक सम तो कंफर्म मिलेगा. एंड वेरी इजीली यू विल गेट आइदर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशंस. से लेट मी टीच यू इन 3 स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये टेबल बना लो. टेबल किस चीज की? दो थ्री क्वांटिटीज है, उनको लिस्ट करो. से जैसे कि 10 हॉर्सेस है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 हॉर्सेस है. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टेबल बना रहे. 10 हॉर्सेस कंज्यूम्स 18 bushels. 18 bushels and it lasts for how many days? It lasts for 36 days. समझ में आ रहा है बच्चों कैसे ले रहे हैं? एग्जाम्पल को वेरी इजीली समझ लेते हैं. नंबर ऑफ हॉर्सेस 10 थे, नंबर ऑफ बुशल्स 18 थे, नंबर ऑफ डेज 36 डेज के लिए लास्ट लॉन्ग होता है. नाउ हाउ लॉन्ग विल 24 bushels? So like there are number of bushels are 24. Last for 30 horses. Last for 30 horses. So let हमको how long it will going to last? So let's say that is x. So step one is over बच्चों. Step one क्या था? How many days it will going to last for? So ये पहले step one क्या था? ये टेबल बनाना. टेबल बनाने सबको आ गया. Now imagine करते हैं ये सम को सॉल्व कैसे करते हैं. देखो
पहली चीज को समझ लेते हैं कि लाइक ये टेबल कैसे बनाया, हो गया। नाउ सेकंड चीज है यहाँ पर एरो लगाते हैं। सो स्टेप 1 टेबल, स्टेप 2 एरो डायग्राम। सो एरो डायग्राम कैसे बनती है बच्चों, लेट मी टीच यू। ओके, से देखो, पहले जहां पर एक्स है वहां पर पहुंचो और वहां पर एरो लगा दो। ओके, आई जस्ट चूज अनदर कलर। देखो बहुत सिंपल है, आई एम चूजिंग दिस एरोज विद ब्लैक एरो। ओके, ये जहां पर भी एक्स है वहां पर एरो होना जरूरी है। आई रिपीट, जहां पर भी एक्स है वहां पर एरो होना जरूरी है। सो फर्स्ट यू अंडरस्टूड वेयर इज द एरो, वेर एवर इट इज एक्स। नाउ अभी हम लोग इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सी, if there are 18 bushels, it lasts for 36 days. बहुत गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। If there are 18 bushels, it lasts for 36 days. So, if the number of bushels are increases, 18 से 24 बन रहे, it will last for more days or less days. Simple. सोचो सोचो एक बार. If 18, they last for 36 days. So, if थोड़े बढ़ा दिए हैं bushels, so of course they will last for more number of the days. More word is very important. So यहाँ पर कौन सी quantity more है, 24. So 24 की तरफ arrow होना जरूरी है. You understood? I'll repeat the concept. I'll repeat. कई लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया है तो once again ध्यान से सुनिए. So see, if there are 18 bushels, they last for 36 days. The moment number of bushels are increased, that is 24, of course the number of bushels are increased, so they will last for more days or less days? Yes, they will last for more days. They will last for more days because more quantity, it will last for more days. Now more है, इसके लिए बड़ा वाला नंबर सोचते हैं. more क्या है, 24. सो बड़ा नंबर सोचो 24 है. सो इसके लिए 24 के पास एरो आ गया. सबको समझ में आ रहा है? नाउ इसके बारे में सोचते हैं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सोचेंगे. सी इफ देयर आर 10 हॉर्सेस, understand, if there are 10 horses, the quantity lasts for 36 days. If there are 10 horses, the quantity lasts for 36 days. If there are more horses, matlab number of horses are increased. If the number of horses are increased, it will last for more number of days or less number of days? Yes, it will last. The more horses, the quantity will last for less number of the days. So less number मतलब छोटे के पास सोचना है. सो छोटे के पास एरो लगा दो. सो 10 एंड 30 में से छोटा कौन है, 10 और 30 में से छोटा है 10. इसके लिए एरो यहां पर लग गया. सो हमारा सेकंड स्टेप गॉट कंप्लीटेड. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर दिस टेबल. सेकंड स्टेप, पुट दी एरोज. एरो लगाने का लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से लॉजिक समझ में आना चाहिए बच्चों. एरो कैसे लगाते हैं, पहले एक्स के पास एरो लगा दो, फिर ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करो 18 से 36 डेज में. सो नंबर ऑफ बुशेस आर इंक्रीज, सो द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज. सो इसके लिए इंक्रीज है, बड़ा हो रहा है, मोर होने वाला है. सो इसके लिए बड़े नंबर के पास एरो लगा दिया. द नंबर ऑफ हॉर्सेस विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज. सो डिक्रीज है, इसके लिए छोटे नंबर वाले के पास एरो लगा दिया. सबको समझ में आया ये एरो कैसे लगाते हैं? अगर नहीं समझ में आए तो इसको प्लीज रिवाइंड कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. सो देखो बहुत सिंपल चीज है. ये एरो लगाने का स्टेप 2 हो गया. नाउ स्टेप 3, मैंने क्या प्रॉमिस किया था, 3 स्टेप्स में आंसर करेंगे और आपको 4 मार्क मिल जाएंगे. देखो तीसरा स्टेप, अभी तीसरा स्टेप देखो, सोचो बहुत अच्छा सिंपल समय, बहुत ही इजी समय बच्चों. देखो अब इसको लिखते कैसे है, देखो जहां पर एक्स है, मतलब जहां पर एरो है वो न्यूमरेटर में रहेगा. आई रिपीट, जहां पर एरो का हेड है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा. सो विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस एक्स क्वांटिटी. सो एक्स अपॉन 36 पहला आ गया. अब ये जो दो बाकी बचे हुए इनको कैसे लिखते हैं उनको समझते हैं. देखो जहां पर एरो है उसको न्यूमरेटर में लो, 10 अपॉन 30 इनटू जहां पर एरो है, जहां पर एरो है वो क्वांटिटी न्यूमरेटर में आएगी, 24 अपॉन 18. देखो ये था स्टेप नंबर 3. नाउ इसके बाद क्या है, बहुत छोटा एंड इजी स्टेप है ये कैलकुलेशन करने का. कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, देखो x इज इक्वल्स टू, देखो न्यूमरेटर में जो कुछ भी उसको न्यूमरेटर में रखो, 10 इंटू 24 और 30 इंटू 18, जो डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में रखो. अभी इधर वाला जो डिनोमिनेटर है, इफ आई शिफ्ट टू अदर साइड, इट विल गो टू द न्यूमरेटर ऑफ दिस पार्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत इजी समय, बहुत इजी, और बहुत फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको. सो 6 4 जा 6 3 जा, अब ये 3 12 जा,
अब ये और क्या कैंसिल हो सकता है, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 1 जा 3 4 जा, सो इट विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, 4 4 जा 16 डेज। सो x की आंसर क्या आ जाएगी, 4 इंटू 4 16 डेज। सो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार 1 सेकेंड पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पर था, फॉर हाउ मेनी डेज, okay, if 10 horses consumes 18 bushless in 36 days, how long will 24 bushless last for 30 horses? So question number, so it will last for 16 days. Question number 5 का आंसर है, देखो यहाँ पर 16 days. Isn't it very easy? बहुत ही simple है. Did you liked it? If you have liked it, please copy paste this question quickly in your book and then hit that like button. I hope you've understood. चलो, I'll, you can pause the video over here, write it on this stuff in your book, and then we will move ahead with the next sum, guys. Okay, please write it on over here and put the box for your all your final answers, guys. Box होना बहुत जरूरी है. Okay. Okay, students, so we will do one more sum, sum number 7. देखो sum number 7 यहाँ पर है, 90 men can complete a work in 24 days. 90 men. So first of all, we'll make the table. See, 3 steps. First table, second arrow, third cross multiplication or that multiplication step, and then you are done with 4 marks. Okay. So first, number of days. So number of days क्या है बच्चों? देखो number of days. That's first quantity. Complete a work. Okay, नंबर ऑफ मेन, सॉरी नंबर ऑफ डेज नहीं डालते, पहले नंबर ऑफ मेन्स डालते हैं. नंबर ऑफ मेन, फिर नंबर ऑफ डेज, एंड देन नंबर ऑफ आवर्स. नंबर ऑफ आवर्स, देखो 3 क्वांटिटीज है, मेन, डेज and hours. So if there are 90 men, they work for 24 days, working every day for 8 hours. Okay, now understand the second quantity. How many men are required? Let's say x men are required, हमको पता नहीं है कितने men, so we are taking x men are required to complete the same work for 18 days. 18 days में खत्म करना है उनको, and then that too they are working for 7.5, 7.5. नाउ स्टूडेंट प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सम है ये. अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले सम में एक्सप्लेन किया था, देखो पहला वाला एरो स्ट्रेट लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्स, वी विल पुट, जहां पर एक्स है वहां पर एरो लगा दिया है. नाउ हमको सोचना पड़ेगा ये क्वांटिटी, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज के बारे में सोचते हैं. इफ देयर आर 24 days, they require 90 men. If there are 24 days, they require 90 men. But if the number of days are reduced, like 18 days में काम खत्म करना है, so we want, if less days, मतलब बहुत कम टाइम में हमको अगर टाइम में काम खत्म करना है, we want more number of the men. We want more number of the men. That means इसमें से more कौन है, 24. So we will put arrow to the 24. You understood? Because we want more number of men, we are putting arrow next to more. Okay, between these two quantities. Now we are to compare number of hours with number of men. Number of hours कितने हैं? If they are working for 8 hours, they require 90 men. If they are working for 8 hours, they require 90 men. So if number of hours are less, they want more number of the men, because पहले वो 8 घंटे काम करते थे, अभी 7.5 hour ही काम कर रहे. Obviously the more number of the men will require to finish the same task, isn't it? So since more है again, so between 8 and 7.5, 8 is more, so we are putting the arrow next to 8. I hope you understood this arrow. So 2 steps we've completed. First of all, making the table, 2 putting the arrows, and now the last step. The last step is of calculation. So very simple work. We will just do like this. पहले x upon 90 लिखो, जहां पर भी आ रहे हो उसको न्यूमरेटर में लिखो. प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल. यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक. सी, x को न्यूमरेटर में लिखो, x अपॉन 90, फिर जहां पर भी आ रहे हो उसको न्यूमरेटर में लिखो, 24 अपॉन 18. यहाँ पर देखो कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, वेरी गुड, जहां पर एरो है वो वाला न्यूमरेटर में आएगा. एरो कहां पर है, 8 के पास. So 8 upon 7.5. Very nice. Good. Thumbs up. You got it perfect.
नाउ देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशंस के लिए। अगर ये 7.5 से अगर हम लोग 75 बनाते हैं तो इसको 80 बना देंगे। गाइस बहुत सिंपल चीज है ये, डेसिमल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, आ जाएगा शायद से। आप सभी को ये आना जरूरी है। सो 24 इंटू 80, अब ये जो 90 है इसको ये न्यूमरेटर में ले लेंगे, इंटू 90 अपॉन, सिंस यहाँ पर मैंने 80 बना दिया, ये बन जाएगा 75 इंटू ये बन जाएगा 18। अब देखो बच्चों इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 6 3 जा 6 4 जा 15 5 जा 15 6 जा। अब छोटे छोटे नंबर से भी कर सकते हैं इसको, बहुत इजी है। 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 16 जा 8, 16 5 जा 80। अब देखो बच्चों कितने मेन रिक्वायर्ड है, मेन वुड बी, देखो 4 2 जा 8, 8 into 16, 16 8 जा 128, 128 mains are required. I hope you understood this, isn't it? बहुत छोटा वीडियो है ये, बहुत आपको अच्छा लगा रहेगा। Give big thumbs up and then in case if you have not understood something, put it in the comment box. देखो ये 128 है, 7th वाला 128 में correct answer, you got it correct answer. Hopefully you understood this. So pause over here video and copy paste this entire sum quickly in your book guys. Pause यहाँ पर pause कीजिए अपने वीडियो को और ये sum को अपने book में लिख दीजिए guys. I hope you like my channel, isn't it? Thank you for watching it.